Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter Framing the Constitution. Framing the Constitution. If you will minutely observe about this topic, framing the constitutions, you can easily understand that what we are going to read. In this chapter, we will discuss that which process our constitution frame, by whom our constitution made, and who, I mean to say that which leader play important role in the making of constitution. This is very strange matter that Mahatma Gandhi, he was not the member of Constituent Assembly, but even the Constituent Assembly highly influenced the Gandhism philosophy, Gandhism theory, social welfare of the state, and state should be always ready to provide their services for their own people. This is the very strange matter. Even as you know that in India, during that time, there are the various type of community who lived in, various type of class, language, culture. I mean to say that diversity. There are the various diversity, बहुत सारी विभिन्नताएं you have seen during that time. It was a challenge for the Constituent Assembly members that they make a such type of constitution in which no one rights violated by anyone other's group. No one encourage their boundary. Everyone feel free and pleasures life in our country. That was the challenge of the Constituent Assembly. One more thing which is very important, that someone questioned on the Constituent Assembly, that it was not the Constituent Assembly, it was the Congress framed Constituent Assembly. How they were saying, we will discuss in this chapter. My dear student, in this chapter, we are going to start कि संविधान के निर्माण की जो नए युग की शुरुआत थी, कैसे हुआ। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लिखित संविधान। हम अपने देश के आकार, उसकी विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई, इसकी पेचीदगियों को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश था। ऐसे में देश को एकजुटता की ओर प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक एक सूत्रबद्ध किया जाना संविधान में लाजमी था। संविधान एक ऐसा बने जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाभाषी, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्मों की मान्यताओं के लोग एक साथ रह सकें, किसी के अधिकार कहीं भी वायलेट न हो। इस हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के साझा राजनीतिक प्रयोगों को सम्मिलित किया। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान में के जो घाव थे उनमें मरहम लगाने के लिए विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया, उनके अधिकारों को सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। भारतीय समुदाय विभिन्न वर्गों में बटा था। समुदाय में बटे हुए जातियों की एक साझा राजनीतिक प्रयोग, उनके अधिकार, उनके हित कहीं प्रभावित न हो, इन चीजों का ख्याल भारतीय संविधान में रखा गया। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच की भावना, ये समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी रोकने के लिए कानून बनाने और उनके निवारण के लिए भी प्रावधान करना था। लोकतांत्रिक संस्थाओं
को विकसित करने का प्रयास भी करना था। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 में से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके जो ड्राफ्टिंग हो रही थी, जो मसौदा बन रहा था, एक एक भाग पर लंबी चर्चा की गई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन एक लंबा सेशन, 11 सभाएं, और तब जाके भारतीय संविधान एक कंप्लीट फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो आई मीन टू से दैट अ लॉन्ग effort which was done by Indian leaders during making up our constitution, during framing up our constitution, because they were aware that in India there were the various type of caste, class, gender, community, culture, language, race. So they minutely observed about their rights, their favor, and they tried that no one have right to violate any other's right. Democratic government they try to form and they succeed also. सफल भी हुए और भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। एक लंबा कालक्रम, एक लंबा इतिहास भारतीय संविधान के निर्माण की आपके सामने। The Indian constitutions which came into effect on 26 January 1950 had the dubious distinctions of being the longest in the world, but its length and complexity are perhaps the understandable when one considered the country's size and the diversity. At independence, India was not merely large and diverse, but also deeply divided. Our constitutions designed to keep the country together and to take it forwarded had necessarily to be the elaborate, carefully worked out and the painstakingly drafted documents. For one thing, it sought to heal wounds of the past and the present, to make Indians different class, caste and the communities come together in a shared political experiment. For another, it sought to nurture democratic institutions in what had long been a culture of hierarchy and defense. The constitutions of India was framed between December 1946 and December 1949. During this time, its drafts were discussed clauses by clause in the Constituent Assembly of India, in all the assembly. I mean to say that what I am telling you are getting, my dear student, and held 11 sessions in the making of constitutions. The leaders, they took 11 sessions for that, with the sitting spread over 165 days in between the sessions. The work of revising and referring the draft was carried out on the various committees and subcommittees. From your political silence, I mean to say that this was the new type of political changes which was introduced in India. From your political science textbook, you know what the Constitution of India is, and you have seen how it was worked over the decades since independence. This chapter will be introduced you to the history that lies behind the constitutions and the intense debates that were part to its making. If we try and hear the voice within the Constitution Assembly, we get an idea of the process through which the Constitution was framed and the vision of the new nation formulated. आप अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप वहां देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय संविधान का किस तरीके से आज स्वतंत्र भारत में एक सुस्थापूर्वक उपयोग हो रहा है। तो आज
हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले हम एक बात करेंगे उस एरा पे जो टिम्बरलेस टाइम था। टिम्बरलेस टाइम इट मीन्स एक ऐसा समय जो अत्यंत ही कठिन अवस्था थी देश के लिए। बट बिफोर दिस टॉपिक we have to know about that the constitution for India and their demand। भारत में संविधान के निर्माण की बात कब कब की गई, तो सबसे पहले इन चीज़ों पे बात करते हैं, फिर बात करेंगे इन पूरे संविधान निर्माण की प्रोसेस में। सबसे पहले अगर भारत में संविधान निर्माण की बात देखें तो हमें एक स्पष्ट रूप से स्वराज पार्टी भारत के लिए एक संविधान हो जो भारतीयों के द्वारा बने, इस तरह की मांग स्वराज पार्टी ने किया। महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा, भारतीयों के द्वारा होगा। महात्मा गांधी संविधान निर्माण किसी प्रक्रिया में अगला स्टेप उठा जिसमें भारत में संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई थी। आंशिक रूप से ही सही, वो कहते हैं क्रिप्स में थोड़ी सी क्रिप्स मिशन प्रॉमिस किया गया कि भारत में संविधान बनेगा, लेकिन इन दोनों के बीच नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट में जब बर्कनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया कि आप अपने लिए एक संविधान बना के दिखाइए, तब मोतीलाल नेहरू के साथ कई सारे दल के नेता संगठित होकर के एक संविधान निर्माण की बात रखी। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो सका क्रिप्स मिशन। और फाइनली 1946 कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन प्लान जिसने पहली बार भारतीयों को संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात स्वीकार की। कैबिनेट मिशन वो प्लान था जिसमें पहली बार स्वीकार किया गया था कि भारत में एक संविधान का निर्माण होगा जो भारतीयों के द्वारा होगा। और फिर कैबिनेट मिशन के प्लान के बाद भारत में इलेक्शन 1946 का, और भारतीय इलेक्शन के बाद भारतीय राजनेताओं के द्वारा संविधान निर्माण की बात आगे बढ़ी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात को इनकार कर दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन में टाइम लगेगा, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पे पूरे भारत को विविध कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया और 10 लाख की जनसंख्या पे 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की बात स्वीकार की गई संविधान सभा के लिए। संविधान सभा में 10 विमेन मेंबर भी थी। कई सारी कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, स्टेट कमेटी, और अलग अलग नेताओं को इसका नेतृत्व दिया गया। 9 December 1946, that was the first day when first meeting held for making our constitution. सच्चिदानंद सिन्हा who officiate, I mean to say that, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्यक्षता की, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए और भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इन संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत से और इन पूरे चीजों को किनारे करें तो हमें 2-3 चीजें क्लियर दिखेंगी। क्या? पहला कि देश में उस समय उथल पुथल का दौर था। 1946, 16 अगस्त 1946, that was planned by Muslim League Direct Action Day, and in the Direct Action Day there were the various riots happened, especially eastern portion of India and western portion of India,
Eastern portion because it was also the Muslim majority place, and western portion also Muslim majority place. In that area the huge amount of riot happened. बड़े पैमाने पर दंगे कराए गए और इस दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। बंगाल पूरी तरीके से दंगों में चल रहा था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गांधी जी के हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सिद्धांत को पूरी तरीके से नकार के दंगों की आग में झोंक दिया गया था। देश पूरी तरीके से चल रहा था, लेकिन इस समय कुछ अच्छी बातें थी। वो थी भारत के लिए भारतीयों के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाना और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। 1945-46 की जो जाड़े की समय में, सर्दियों के समय भारत के प्रांतों में चुनाव हुए और इसके पश्चात जो प्रांतीय संसद ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। लेकिन इन पूरी घटनाओं के पीछे के दृश्य को अगर आप देखेंगे, इफ यू विल माइनरली ऑब्जर्व अबाउट दैट द हिडन पिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, a hidden peak of our nation during that time, what was the scenario, then you become very despair, आप निराश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय की जो घटनाएं थी वो किसी को भी व्यथित करने वाली थी। देश दंगों की आग में चल रहा था। संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। ये महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग भी था। जो लोग सोच रहे थे कि देश आज एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, वो लोग ये भूल गए थे कि उस समय देश तमाम सारी विपदाओं में भी घिरा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया गया, परंतु इसके साथ ही उसे दो पार्ट में बांट दिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, when you will read chapter, that was the chapter number 14, then you can easily understand that which type of circumstances was faced by the Indian people during that time, during partition time. दो देश बांट दिए गए, भारत और पाकिस्तान। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए प्रयासों को लोगों ने बखूबी याद किया। 1946 के आगमन में, बसंत ऋतु में बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, आईएनए रिवोल्ट 1946, और फिर लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ किस तरीके से थी। 40 के दशक में आखिरी दिनों में विभिन्न भागों में मजदूरों, किसानों का जो आंदोलन हो रहा था, ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक घटनाओं के रूप में लोगों के जीवन में अवेलेबल थी, उपस्थित थी। व्यापक हिंदू और मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों की एक अहम पहलू थी। यह आंदोलन सफल क्यों हुए? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे। इनके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे, अनसक्सेस होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में दंगे शुरू हुए। कलकत्ता से बड़ी हिंसा हुई। पूरे भारत में लगभग साल भर तक ये राइट्स चलते रहे। हत्याओं का एक लंबा सिलसिला आपको दिखाई देगा। बर्बर हिंसा हुई, विभत्स नाच, भीषण जनसंहार, तमाम लोगों के घर जला दिए गए, घर लूट लिए गए, महिलाओं की इज्जत को तार तार किया गया। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट द what you think in your mind, all the accident happened during the partition time. No one saved, neither child nor women nor men also. They were what? They were targeted behalf of their religion. They have targeted behalf of their race. They have targeted behalf of the gender. That was the very miserable and critical condition for our nation. During partition time, Indian people faced it.
और एक लंबा एसेसिनेशन हुआ, जनसंहार हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद की जो माहौल था वो उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और हिंदू, सिख के लिए ये दिन एक निर्मम चुनाव का क्षण था। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन उन्हें डिसाइड करना था कि वो इंडिया में रहें या पाकिस्तान में। I am telling you that the partition, I am telling you that the date 15 August 1947, it was a very important date for all Indians. But no doubt, no, don't forget that this date was one of the miserable conditions for all Hindu, Muslim, Sikh who suffered the partition. They had to decide that which place they have to settle themselves, either India or Pakistan. They faced the various riots. They were looted. And how can you celebrate the 15 August as a festival during that time when they were, I mean to say that your own people face such type of difficulties, such type of problems. So, उनके सामने ये तय करना था कि किसका चुनाव करें। तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियां पुरानी जड़ों से उखाड़ जाने का चुनाव का क्षण था। दे हैव टू डिसाइडेड दैट कि हमें अब अपने एंसेस्ट्रल लैंड को छोड़ना है, हमें एक नई जगह जाके बसना है। वो नया जगह कंप्लीटली अननोन होगा। करोड़ों रिफ्यूजीज यहां से वहां जा रहे थे। मुसलमान पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू, सिख और पश्चिम बंगाल से पूरे पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सके, बीच रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान महाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश मोनार्की, जो ब्रिटिश क्राउन की अधीनता को स्वीकार करते थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे वैसे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी आजादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन जो सुपरवाइजर था, प्रेक्षक था, उसने कहा कि महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें उसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थीं। बाहर जो कुछ चल रहा था उसमें संविधान सभा में होने वाले बहस और विचार विमर्श को भी अछूता कैसे रखा जा सकता है। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि जो ऑब्जर्वर था वो ये देख रहा था कि भारत एक नेशन के रूप में नहीं, वो कई टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ था, बटा हुआ था। भारत अपनी स्वतंत्रता का जो सपना देख रहा था वो कई खंडों में बिखर चुका था। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। संविधान सभा में ये सारी सिचुएशंस जिसकी मैंने बात की सब कुछ हो रहे थे। जो कुछ चल रहा था उसमें संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी अछूता कैसे रह सकता था। लोगों ने इस पर खूब बातें की। लोगों का एक लंबा डिस्कस और डिबेट इस पे हुआ। लोगों के राइट्स के बारे में बात हुई, विमेंस राइट्स के बारे में बात हुई, माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई, शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स की बात की गई। फिर इन सभी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया। तो what I am telling you that these are all things which is important for the human beings, for the Indians during that time. These are all incidents influence the constituent assembly members that they have to ask question related that. What is arrangement for that? The refugees, they migrated from the west to east and in the western frontier, and they migrated to east to west from the eastern frontier. क्या हो रहा था उनके साथ, क्या होगा उनके साथ, इन सारी चीजों को रखा गया। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस समय नेहरू ने अपना ये प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी कि बहुत समय पहले
हमने नियत से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि की इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। ये स्पीच का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिया गया था। तमाम सारी परिस्थितियों को झेलते हुए भारत स्वतंत्र हो रहा था। तमाम सारी उठापटक, विपदाओं, संकटों के बाद भारत स्वतंत्र हो रहा था। अब आपको यहां पे इन चीजों को भली प्रकार से ठीक से समझना होगा। We will discuss all the every each sections, the discussion, debate, the question asked by the Constituent Assembly member during the discussion. These are all we discuss in this chapter. I hope you are getting understand that what I am discussing here. At tumultuous time, the year immediately preceding the making of the Constitution had been the exceptionally the tumultuous, a time of great hope, but also of object the disappointment. On 15 August 1947, India had been made free, but it had also been divided. To phrase in the popular memory were the Quit India struggle of 1942. Perhaps the most widespread popular movement against the British Raj, as well as the beat by Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid. An even more recent uprising had also evoked much popular sympathy. This was the rating of the Royal Indian Navy in the Bombay and other cities. In the spring of 1946 through the late 1940s, there were the periodic is scattered the mass protest of workers and peasants in the different part of the country. One striking feature of these popular upsurges was the degree of the Hindu-Muslim unity they manifested. In contrast, the two leading Indian political parties, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at the settlements that would bring about religious reconciliations and the social harmony. The great Calcutta killings of August 1946 began a year of almost continuous rioting across northern and eastern India. The violence culminated in the massacre that accompanied the transfer of the population when the partition of India was enhanced. One Independence Day, 15 August 1947, there was one outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived through that time. But innumerable Muslims in India and Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced with cruel choice, the threat of sudden death, of the squeezing of the opportunities on this one side, and for forcibly trading away from their age-old roots and other. Millions of refugees were on the move, Muslim into East and West Pakistan, Hindu and Sikh into West Bengal and the eastern half of the Punjab. Many perished before they reached their destination. Another and seriously less sections of problem faced by the new nation was that of the princely states during the period of the Raj. Approximately one third of the area of the subcontinent was under the control of Nawabs and Maharajas, who owed allegiance of the British crown but were otherwise left mostly free to rule or misrule their territory as they wished. When the British left India, the constitutional status of these princes remained the ambiguous, as one the contemporary observer remarked,
some Maharajas now began to luxuriate in wild dreams of the independent power in India of many partitions. This was the background in which the Constituent Assembly meet. How could the debates within the assembly remind the insulted from what was happening outside? I hope you are getting what I am telling. This is the very important things कि उस समय के जो राजा और महाराजा थे वो लोग क्या सोचते थे। वो ये सोचते थे कि हम भारत की स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र अस्तित्व में आएंगे, हमारा एक अपना देश होगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मुल्क की स्थिति गठबंध हो गई। याद करिए 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, वहाँ मैंने आपको एक लाइन कहा था कि महात्मा गांधी ने एक बात कही अपनी जनता से कि आप लोग अब राजा महाराजा या तो जनता के अधिकारों, जनता के संप्रभुता को स्वीकार कर लें या आप लोग अपनी स्थिति को सुनिश्चित करें। डियर स्टूडेंट, व्हाट रीड टुडे? फर्स्ट, द कंडीशन ऑफ कांग्रेस, सेकेंड मुस्लिम लीग, एंड थर्ड द प्रिंस एंड किंग्स। इन लोगों के बीच की बात है, इन लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इनको आप अगर देखें तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अपनी यहाँ सबकी अलग अलग डिमांड्स थी। कांग्रेस की अलग, मुस्लिम लीग अलग और प्रिंस अलग। और पार्टीशन के समय सभी अपने फेवर की बात कर रहे थे। इन सब में भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से भारतीय संविधान जरूर प्रभावित रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।